السلام علیکم ناظرین، صبح بخیر۔ آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹیلی ویژن نیوز خبرنامے کے ساتھ میں ہوں رضوان علی احمد، میں ہوں نازیہ خان اور کھیلوں کی خبروں سے میں سمیع اقبال آپ کا ساتھ دوں گا۔ شامل کریں گے سب سے پہلے ہیڈ لائن۔ ممتاز عالم دین اور جامعہ بنوریا کے محترم مفتی نعیم کراچی میں انتقال کر گئے۔ وہ عارضہ قلب میں مبتلا تھے۔ صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی، وزیر اعظم عمران خان، آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ، اسپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر اور گورنر سندھ سمیت وفاقی وزراء اور سیاسی شخصیات کا ممتاز عالم دین مفتی نعیم کے انتقال پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار۔ مرحوم کے بلندی درجات اور لواحقین کے لیے صبر جمیل کی دعا۔ مفتی محمد نعیم کی نماز جنازہ آج بعد نماز عصر ادا کی جائے گی۔ جید عالم دین اور جامعہ بنوریا انٹرنیشنل کے چانسلر مفتی محمد نعیم کے انتقال پر رنجیدہ اور مغموم ہوں۔ میری ہمدردیاں پسماندگان کے ساتھ ہیں، وزیر اعظم عمران خان کا ٹویٹ۔ اوورسیز پاکستانیوں کے لیے بڑی خبر، حکومت کا بین الاقوامی پروازوں کے لیے آج سے فضائی حدود جزوی طور پر کھولنے کا فیصلہ۔ اقدام خاص طور پر سمندر پار پاکستانی افرادی قوت کی سہولت کے لیے کیا گیا ہے جو کورونا وبا سے متاثر ہوئے۔ واپس آنے والوں کو ہر ممکن سہولت فراہم کریں گے، وزیر اعظم عمران خان کا ٹویٹ۔ چینی انکوائری رپورٹ پر حکم امتناع ختم۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے حکومت کو شوگر ملز کے خلاف کارروائی کی اجازت دے دی۔ قانون کے مطابق وفاق کے پاس احتساب آرڈیننس کے تحت نیب کو ریفرنس بھیجنے کا اختیار ہے۔ عدالت عالیہ۔ بلوچستان کا آئندہ مالی سال کا 4 کروڑ 65 ارب سے زیادہ کا بجٹ اسمبلی میں پیش۔ ترقیاتی پروگرام کے لیے 1 کروڑ 18 ارب 25 کروڑ مختص۔ جاری اسکیمز کے لیے 60 ارب 87 کروڑ اور نئے اسکیمز کے لیے 57 ارب روپے رکھے گئے۔ صوبے کو آئندہ مالی سال میں ریونیو کی مد میں 3 کروڑ 67 ارب روپے سے زیادہ آمدنی متوقع۔ صوبائی وزیر خزانہ میر ظہور بلیدی۔ ملک بھر میں 20,75,000 ایکڑ رقبے پر ٹڈی دل کے خاتمے کے لیے آپریشن مکمل۔ بہتر نتائج کے لیے آرمی کے ہیلی کاپٹرز کا بھی استعمال۔ آنے والے دنوں میں ایران اور عمان سے ٹڈی دل کے نئے حملے کا خدشہ۔ تلفی کے لیے استعداد کار بڑھا رہے ہیں۔ وفاقی وزیر سید فخر امام کی میڈیا سے گفتگو۔ پاکستان میں کورونا کیسز کا گراف تیزی سے بلند۔ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران 6,604 افراد میں وائرس کی تصدیق۔ تعداد 1,71,666 تک جا پہنچی۔ مزید 153 افراد جان کی بازی ہار گئے۔ مجموعی طور پر 3,382 اموات، 63,504 افراد صحت یاب۔ کورونا وبا کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے لاہور کی 50 سے زائد علاقے سیل۔ لوگوں کو صرف انتہائی ضرورت کے تحت گھروں سے باہر نکلنے کی اجازت۔ لاک ڈاؤن والے علاقوں میں اسپرے آکسیجن سلنڈرز کی ذخیرہ اندوزی کے خلاف صوبے میں دفعہ 144 نافذ۔ وزیر اعلیٰ سردار عثمان گزار۔ سندھ میں تعلیم اور ٹرانسپورٹ کی بہتری کی کوششیں۔ ایشین ڈیولپمنٹ بینک پاکستان کو 35 کروڑ 90 لاکھ ڈالر فراہم کرے گا۔ اسلام آباد میں معاہدے پر دستخط۔ کراچی کے 6 اضلاع کی مختلف یوسیز میں لاک ڈاؤن جاری۔ صوبے میں گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران 2,190 نئے کیسز۔ وزیر اعلیٰ سید مراد علی شاہ کی وائرس سے بچاؤ کے لیے احتیاطی تدابیر پر عمل کرنے کی اپیل۔
निहत्ते कश्मीरियों पर भारतीय मजालिम का सिलसिला जारी। जिला कोलगाम में एक और नौजवान शहीद। 3 रोज के दौरान शहीद होने वालों की तादाद 9 हो गई। पाकिस्तान की मकबूजा कश्मीर में भारतीय अफवाज की जानिब से कश्मीरी नौजवानों के मावराए अदालत कत्ल की शदीद मजम्मत। बीजेपी हुकूमत काबिज अफवाज की जानिब से इन हलाकतों की बराह रास्त जिम्मेदार है। आलमी बिरादरी मकबूजा कश्मीर में इस सूरत हाल का फौरी नोटिस ले। तर्जुमान दफ्तर खारजा। दुनिया भर में कोरोना से मुतासर अफराद की तादाद 89,05,000 से तजावुज कर गई। 4,66,000 से ज्यादा अमवात, 47,27,000 से ज्यादा सेहतयाब। अमरीका में मुतासर अफराद की तादाद 23,29,000 से ज्यादा हो गई। 1,22,000 के करीब जान की बाजी हार गए। और आज सूरज ग्रहण होगा। पाकिस्तान के बेशतर इलाकों में सूरज 90% चांद के पीछे छुप जाएगा। सूरज ग्रहण सुबह 8 बजे शुरू होगा और 2:35 पर खत्म होगा। पाकिस्तान में रिंग ऑफ फायर का नजारा सखर से गवादर तक देखा जा सकेगा। सूरज ग्रहण को बगैर फिल्टर के बराह रास्त देखना आंखों के लिए इंतहाई मुज़िर हो सकता है। माहिरीन हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। तफसीलात में सबसे पहले आपको आगाह करें, जामिया बनूरिया के मोहतरम और मारूफ आलिम-ए-दीन मुफ्ती मोहम्मद नईम कराची में रज़ाए इलाही से इंतकाल कर गए। तर्जुमान जामिया बनूरिया के मुताबिक वो दिल के आर्जे में मुब्तला थे, ताहम अचानक उनकी तबीयत खराब हुई। उन्हें हस्पताल ले जाया जा रहा था कि वो रास्ते में ही खालिक हकीकी से जा मिले। मुफ्ती नईम 1955 में पैदा हुए। उनकी उम्र 65 बरस थी। मुफ्ती नईम जामिया बनूरिया आलमिया कराची के बानी थे। उन्होंने दीनी तालीम के लिए इंतहाई कम वसाइल से मदरसे की बुनियाद रखी। मुफ्ती नईम के इल्म दानिश के बायस आज इस मदरसे का शुमार जदीद मजहबी और दुनिया की एक बड़े मादरे इल्मी में किया जाता है। उलूम इस्लामी के फरोग के लिए आपकी खिदमत ता देर याद रखी जाएंगी। आपकी इस दरसगाह से मुल्क और बैरून मुल्क हजारों तालिबे इल्म मुस्तफीज हुए और इस दरसगाह को आलमी सतह पर शोहरत हासिल हुई। मुफ्ती मोहम्मद नईम बेशुमार मौके पर फिक्र समेत दुनियावी उमूर में भी गाहे बगाहे अवाम की सरपरस्ती करते रहे। वो मुतादिद अखबारात में सीरत के उन्वानात के साथ साथ इस्लामी और माशरती मसाइल पर अपना कलम इस्तेमाल करते रहे, जबकि कौमी सतह पर मुतादिद मौके पर उन्होंने इफ़हाम व तफ़हीम का रास्ता इख्तियार करने की तजवीज़ दी। मुफ्ती साहब मुतादिद किताबों के मुसन्निफ होने के साथ साथ हदीस और तफसीर कुरान के उलूम में भी इंतहाई मोतबर मकाम रखते थे। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी, वज़ीर आज़म इमरान खान, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा, स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर, गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल और वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह समेत विफाकी वज़रा और सियासी शख्सियात ने मुमताज़ आलिम-ए-दीन के इंतकाल पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया और मरहूम की बुलंदी दर्जात और लवाहिकीन के लिए सब्र जमील की दुआ की है। मुख्तलिफ मजहबी और सियासी जमातों की जानिब से मुफ्ती मोहम्मद नईम की खिदमत पर खराज अकीदत और गमज़दा खानदानों से ताज़ियत का सिलसिला जारी है। मुफ्ती मोहम्मद नईम की नमाज जनाजा आज बाद नमाज असर अदा की जाएगी। वज़ीर आज़म इमरान खान ने जय्यद आलिम-ए-दीन और जामिया बनूरिया इंटरनेशनल के चांसलर मुफ्ती मोहम्मद नईम के इंतकाल पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया है। वज़ीर आज़म ने अपने ट्वीट में कहा कि मैं मुफ्ती मोहम्मद नईम के इंतकाल पर रंजीदा और मग़मूम हूँ। मेरी हमदर्दियाँ पसमानदगान के साथ हैं। हुकूमत ने बैन अक़वामी परवाज़ों के लिए आज से मुल्क के फ़ज़ाई हदूद जुज़वी तौर पर खोलने का फैसला किया है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपने ट्वीट में कहा कि ये इक़दाम खास तौर पर समुद्र पार पाकिस्तानी अफरादी क़ुव्वत की सहूलत के लिए किया गया है जो कोरोना वबा से बहुत मुतासर हुए हैं। वज़ीर आज़म ने कहा कि समुद्र पार पाकिस्तानियों ने बहुत हौसले से काम लिया है और हमें उन पर फख्र है। वज़ीर आज़म ने कहा कि बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों का वापसी पर खैर मकदम करते हैं। हुकूमत उनको हर मुमकिन सहूलत फराहम करेगी। वज़ीर आज़म ने वबाई सूरत हाल में अपने ज़रूरतमंद हमवतनों की इमदाद के लिए बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों के मुखय्यराना किरदार को सराहते हुए कहा कि ऐसे बहुत सी मिसालें मौजूद हैं जहां ओवरसीज पाकिस्तानी कम्युनिटी ने मुश्किल वक्त में हमवतनों की दिल खोल कर मदद की है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चीनी इंक्वायरी कमीशन की तश्कील दुरुस्त करार दे दी।
इस तश्कील के बाद हुकूमत को शुगर इंक्वायरी कमीशन की रोशनी में कार्रवाई जारी रखने की इजाजत मिल गई है। इस हवाले से मुख्तसर फैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मनील्ला ने सुनाया। फैसले में कहा गया है कि कानून के मुताबिक एहतसाब ऑर्डिनेंस के तहत विफाक के पास नैब को रेफरेंस भेजने का इख्तियार है और चीनी इंक्वायरी रिपोर्ट से शुगर मिल्स मालिकान के बुनियादी हुकूक मुतासर नहीं हुए। फैसले के मुताबिक काबीना ने 21 मई को कमीशन की रिपोर्ट का कानून के मुताबिक जायजा लिया। बलूचिस्तान का आइंदा माली साल के लिए 87 अरब के खसारे का बजट पेश कर दिया गया है। बजट का कुल हजम 4 खरब 65 अरब रुपए से ज्यादा है, जिसमें गैर तरक्याती अखराजात के लिए 3 खरब 9 अरब जबकि तरक्याती अखराजात के लिए 1 खरब 18 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। तफसील बताएंगे सरफराज शेख। बलोचिस्तान असम्बली का इजलास स्पीकर अब्दुल कुद्दूस बजंजो की सदारत में शुरू हुआ। इजलास के दौरान सूबाई वजीर खजाना जहूर बुलेदी ने आइंदा माली साल 2020-21 के लिए 465 अरब रुपए का बजट पेश किया। बजट में तरक्याती मंसूबों के लिए 118 अरब रुपए जबकि गैर तरक्याती अखराजात के लिए 309 अरब रुपए रखे गए हैं। बजट में 87 अरब रुपए से जायद का खसारा भी जाहिर किया गया। जनाब स्पीकर, मौजूदा बजट का महवर अवामी तरजीहात को मफाद में रखते हुए बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर की तामीर, महकमा सेहत में इस्लाहात, पैदावारी शोबे में मजीद बहरामंद होने, समाजी तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दाम, तालीम, पीने के साफ पानी की फराहमी, रोजगार के नए मौके पैदा करने और अमन अमान की मुकम्मल बहाली है। नए माली साल के बजट के मुताबिक तालीम, सेहत और अमन अमान के क़याम पर खुसूसी तवज्जो दी गई। तालीम के शोबे में बेहतरी के लिए 70 अरब, सेहत के शोबे के लिए 31 अरब के अलावा 4.5 अरब रुपए कोरोना वायरस से निपटने के लिए रखे गए हैं। अमन अमान के क़याम के लिए आइंदा माली साल के बजट में 48 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। सूबाई वजीर खजाना जहूर बुलेदी ने नए माली साल के लिए बजट में 6,840 आसामियों का ऐलान भी किया। इससे कल सूबाई काबीना के इजलास में माली साल 2020-21 के लिए बजट तजावीज़ की मंजूरी दी गई। सरफराज शेख, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कोयटा। ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ व तहक़ीक़ के वज़ीर सैयद फ़ख़र इमाम ने कहा है कि टिड्डी दल के खात्मे के लिए बैनुल अक़वामी इदारों से राब्ते में हैं। इस हवाले से चीन ने 4 करोड़ 90 लाख डॉलर की मदद की। रावलपिंडी में सहाफ़ियों से बातचीत करते हुए वफाकी वज़ीर ने कहा कि आने वाले दिनों में ईरान और ओमान से टिड्डी दल के हमले का खदशा है। लोकस्ट का अटैक तो बहुत ज्यादा मिनिमाइज हो गया, पर बाय एंड लार्ज अंडर कंट्रोल है। ओवरऑल तखमीना लगाया है फाइनेंशियल, वो तकरीबन 25-26 अरब रुपए का है। इसमें तकरीबन 14 अरब जो होगा वो फेडरेशन की फंडिंग होगी और 12 अरब जो होगी वो चारों सूबों की फंडिंग होगी। 100 एंटोमोलॉजिस्ट को रिक्रूट किया जा रहा है और उसके साथ ही 100 उनके साथ काम करेंगे लोग जो असिस्टेंट होंगे, और वो जैसे ही वो एक्सपीरियंस गेन करते हैं तो मेरा ख्याल है काफी हद तक हमारी इंटरनल जो कैपेसिटी है वो अपग्रेड हो जाएगी। मुल्क भर में 20,75,000 एकड़ रकबे पर टिड्डी दल के खात्मे के लिए ऑपरेशन मुकम्मल किया जा चुका है। इस्लामाबाद में नेशनल लोकस्ट कंट्रोल सेंटर के अदाद शुमार के मुताबिक 40 अजला के मुतासरा इलाकों में टिड्डी दल तल्फी की मुहिम में 900 टीमें हिस्सा ले रही हैं। बलूचिस्तान के 26 अजला में 9,669 एकड़ रकबे पर ऑपरेशन किया जा रहा है, जिसमें कौमी और सूबाई महकमों की टीमें हिस्सा ले रही हैं। ऑपरेशन में बेहतर नताइज के लिए आर्मी के हेलीकॉप्टर्स भी इस्तेमाल किए जा रहे हैं। सिंध के 6, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के 4 अजला में टिड्डी दल तल्फी ऑपरेशन किया गया है। पाकिस्तान में मजीद 6,604 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है, जबकि 153 अफराद जान की बाजी हार गए। NCOC के मुताबिक कोरोना वायरस से मुतासर अफराद की तादाद 1,71,666 जबकि 3,382 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं। पंजाब में मुतासर अफराद की मजमूई तादाद 64,216, सिंध में 65,163,
اسلام آباد میں 10,279, بلوچستان میں 9,162, خیبر پختونخوا میں 20,790, گلگت بلتستان میں 1,253, جبکہ آزاد کشمیر میں متاثرہ افراد کی تعداد 803 ہو گئی ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران 31,681 نئے ٹیسٹ کیے گئے۔ اب تک ملک بھر میں 63,504 مریض صحت یاب ہو چکے ہیں۔ اسلام آباد میں نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر میں اجلاس کے دوران ملک بھر میں ٹارگیٹڈ اسمارٹ لاک ڈاؤن پر عمل درآمد، NCC کے فیصلوں، آکسیجن کے سلنڈرز کی درآمد اور طبی آلات کی ضروریات کے معاملے کا بھی جائزہ لیا گیا۔ وزیر منصوبہ بندی اسد عمر کی زیر صدارت اجلاس میں صوبائی چیف سیکرٹریز نے ملک بھر میں کورونا SOPs اور اسمارٹ لاک ڈاؤن پر عمل درآمد کی صورتحال سے آگاہ کیا۔ وفاقی وزیر اسد عمر نے تجویز پیش کی کہ صوبائی حکومتیں نجی کارپوریشنز اور دفاتر کو نوٹیفیکیشن جاری کریں کہ اسمارٹ لاک ڈاؤن والے علاقوں میں مقیم ملازمین کی ڈیوٹی پر عدم حاضری پر ان کے خلاف کوئی کارروائی نہ کی جائے۔ انہوں نے صوبائی حکومتوں پر زور دیا کہ وہ وبا کا پھیلاؤ روکنے کے لیے اقدامات پر سختی سے عمل کریں۔ چیف سیکرٹری خیبر پختونخوا نے بتایا کہ پشاور، مالکن، سوات، ہری پور، نوشہرہ اور مردان کے شہری علاقوں میں اسمارٹ لاک ڈاؤن کیا گیا ہے۔ ان علاقوں میں 5 لاکھ افراد مقیم ہیں۔ چیف سیکرٹری پنجاب نے بتایا کہ صوبے کے 8 شہروں میں اسمارٹ لاک ڈاؤن کیا گیا ہے، جس کی زد میں 10 لاکھ افراد آئے ہیں۔ سندھ، بلوچستان، آزاد جموں کشمیر اور گلگت بلتستان کے چیف سیکرٹریز نے بھی اسمارٹ لاک ڈاؤن اور SOP پر عمل درآمد کے حوالے سے بتایا۔ ادھر کورونا وائرس سے نمٹنے کے لیے لاہور میں ضلع انتظامیہ کی جانب سے علامہ اقبال ٹاؤن، کینٹ، ڈیفنس، وابڈا ٹاؤن اور جوہر ٹاؤن سمیت دیگر علاقوں میں گلی گلی کورونا کش کلورین اسپرے کیا جا رہا ہے۔ پنجاب بھر میں آکسیجن سلنڈرز کی ذخیرہ اندوزی کے خلاف دفعہ 144 نافذ کر دی گئی ہے۔ رپورٹ کریں گے محمد سفیان۔ کورونا کی وبا کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے لاہور کے 50 سے زائد علاقے سیل ہیں۔ ان علاقوں میں رہائش پذیر افراد کی نقل و حرکت محدود کر دی گئی ہے اور لوگوں کو صرف انتہائی ضرورت کے تحت گھروں سے باہر آنے کی اجازت دی جا رہی ہے۔ لاک ڈاؤن کیے جانے والے علاقوں کو جراثیم سے پاک کرنے کا عمل شروع کر دیا ہے اور اس سلسلے میں لاہور کے گلی محلوں کو جراثیم سے پاک کرنے کے لیے کلورین سپرے کیا جا رہا ہے۔ لاہور میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کورونا وائرس کے 1160 نئے کیسز رپورٹ ہوئے ہیں، جبکہ پنجاب میں نئے کیسز کی تعداد 2500 سے زائد ہے۔ کورونا وائرس کو شکست دینے والوں کی تعداد 17,965 ہو چکی ہے۔ گورنر پنجاب چودھری محمد سرور اور وزیر اعلیٰ سردار عثمان بزدار کے درمیان لاہور میں ملاقات ہوئی۔ دونوں رہنماؤں نے کورونا سے بچنے کے لیے حکومتی اقدامات کو مزید مؤثر بنانے کا فیصلہ کیا اور وزیر اعظم کے ویژن کے تحت صوبے کی ترقی اور خوشحالی کے لیے مل کر کام جاری رکھنے پر بھی اتفاق کیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار نے اپنے بیان میں کہا کہ کورونا وبا نے زندگی گزارنے کے معمولات کو یکسر تبدیل کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ شہریوں کو سماجی فاصلہ بھی برقرار رکھنا ہے اور تمام احتیاطی تدابیر پر عمل درآمد کرنا ہے۔ لاہور کے جن علاقوں کو سیل کیا گیا ہے وہاں پر عوام کی آمد و رفت کی سخت نگرانی کی جا رہی ہے اور شہریوں کے غیر ضروری باہر نکلنے پر پابندی عائد کی گئی ہے۔ محمد سفیان، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، لاہور۔ ایشیائی ترقیاتی بینک سندھ میں شعبہ تعلیم اور کراچی ٹرانسپورٹ بس سروس کے لیے 35 کروڑ 90 لاکھ ڈالرز فراہم کرے گا۔ اس سلسلے میں اسلام آباد میں سیکرٹری اقتصادی امور ڈویژن اور ایشین ڈیولپمنٹ بینک کے کنٹری ڈائریکٹر نے معاہدوں پر دستخط کیے۔ اقتصادی امور کے وزیر خسرو بختیار بھی اس موقع پر موجود تھے۔ معاہدوں کے تحت ایشین بینک کراچی BRT کے ریڈ لائن منصوبے کے لیے 2 کروڑ 84 لاکھ ڈالر فراہم کرے گا۔ ADB نے 2 کروڑ 35 لاکھ ڈالر بطور قرض فراہم کرنے کا وعدہ بھی کیا ہے، جبکہ بینک گرین کلائمیٹ فنڈ منصوبے کے لیے 3 کروڑ 72 لاکھ ڈالر قرض اور 1 کروڑ 18 لاکھ ڈالر بطور گرانٹ فراہم بھی کرے گا۔ ناظرین، پاکستان میں آج 2020 کا پہلا سورج گرہن ہوگا جو ملک کے بیشتر علاقوں میں دیکھا جا سکے گا۔ سورج گرہن آج صبح 8:46 پر شروع ہوگا جو کہ 2:34 تک جاری رہے گا۔ پاکستان کے مختلف حصوں میں 11:40 پر مکمل سورج گرہن ہوگا۔ پاکستان کے علاوہ چین، بھارت، ایتھوپیا اور کانگو کے کچھ حصوں میں بھی سورج گرہن دیکھا جا سکے گا۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ سورج گرہن کے وقت ہرگز گھر سے باہر مت نکلیں اور گرہن کے دوران سورج کو دیکھنے کی کوشش مت کریں۔
ماہرین کا کہنا ہے کہ چشمہ لگا کر یا کسی اور چیز کے ذریعے بھی سورج کی طرف بالکل نہ دیکھیں۔ ماہرین کے مطابق سورج گرہن دیکھنے والے کی آنکھوں کے پردے کے مرکزی حصے جل سکتے ہیں اور بینائی بھی جا سکتی ہے، جو ایک ناقابل علاج مرض ہے۔ سورج گرہن کے دوران سیلفی لینے کی کوشش نقصان دہ ہو سکتی ہے۔ سورج گرہن کے دوران سورج کی بنفشی شعاعیں اس قدر طاقتور ہوتی ہیں کہ وہ آنکھ کی پتلی کو جلا سکتی ہیں، یہاں تک کہ بینائی جانے کا بھی اندیشہ ہے۔ صرف احتیاط سے ہی آپ خود کو اور اپنے پیاروں کو محفوظ رکھ سکتے ہیں۔ بات کریں گے مقبوضہ کشمیر کی۔ مقبوضہ کشمیر میں جاری بھارتی ریاستی دہشت گردی کے باعث گزشتہ 31 برسوں کے دوران 40,000 سے زائد باشندے ہجرت کر کے دوسرے علاقوں میں پناہ گزینوں کے طور پر رہنے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ پناہ گزینوں کے عالمی دن کے موقع پر KMS کے شعبہ تحقیق کی طرف سے جاری کردہ رپورٹ میں انکشاف کیا گیا کہ ان پناہ گزینوں کی ایک بڑی تعداد آزاد کشمیر کے مہاجر کیمپس میں مقیم ہے، جبکہ بہت سے پاکستان اور یورپی ملکوں میں مقیم ہیں، جن کی تعداد 25 لاکھ سے زیادہ ہے۔ رپورٹ میں پناہ گزینوں کے بارے میں اقوام متحدہ کی 1951 کے ایک کنونشن کا حوالہ دیا گیا، جس کے مطابق مہاجر وہ ہے جو اپنی نسل، مذہب، قومیت اور کسی مخصوص سماجی گروپ کی رکنیت یا سیاسی نقطہ نظر کی وجہ سے ظلم و ستم کے خدشات کے سبب اپنا گھر اور ملک چھوڑنے پر مجبور ہو گیا ہو۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ جموں کشمیر پر گزشتہ کئی دہائیوں سے زائد عرصے سے بھارتی قبضے کی وجہ سے مقبوضہ علاقے کی مسلم اکثریت کو اپنی بقا اور مذہبی شناخت کے حوالے سے شدید خطرہ لاحق ہے، اور یہ خطرہ خاص طور پر 2014 کے بعد بڑھ گیا، جب بھارت میں نریندر مودی کی زیر قیادت BJP کی فسطائی حکومت برسر اقتدار آئی۔ رپورٹ میں کہا گیا کہ ہندو انتہا پسند تنظیم راشٹریہ سوائم سیوک سنگھ کے حمایت یافتہ مودی حکومت اپنے ہندوتوا نظریے کو آگے بڑھاتے ہوئے مقبوضہ کشمیر کی مسلم اکثریت کو اقلیت میں بدلنے اور علاقے کو ہندو ریاست میں تبدیل کرنے پر تلی ہوئی ہے۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فوجیوں نے ریاستی دہشت گردی آج بھی جاری رکھی اور کلگام کے علاقے لوکھڑی پورانہامہ میں محاصرے اور تلاشی کے دوران ایک اور نوجوان کو شہید کر دیا، جس سے گزشتہ 3 روز کے دوران شہید ہونے والوں کی تعداد 9 ہو گئی۔ قابض انتظامیہ نے ضلع میں انٹرنیٹ سروس بھی معطل کر رکھی ہے۔ حریت رہنما محمد یوسف نقاش، فاروق احمد توحیدی، پیر ہلال احمد نے شپیاں اور پلوامہ کے اژدھا میں بھارتی فوجیوں کے ہاتھوں شہید ہونے والے نوجوانوں کو زبردست خراج عقیدت پیش کیا۔ انہوں نے کہا کہ مقبوضہ کشمیر کے عوام حق خود ارادیت کے لیے قربانیاں دے رہے ہیں اور وہ مکمل کامیابی تک اپنی جدوجہد جاری رکھیں گے۔ ادھر بریڈ فورڈ میں آن لائن کشمیر کانفرنس کے مقررین نے مقبوضہ کشمیر میں گزشتہ سال 5 اگست کو اور اس کے بعد بھارت کے غیر قانونی اقدامات کی مذمت کی۔ انہوں نے عالمی برادری سے اپیل کی کہ وہ اقوام متحدہ کی متعلقہ قراردادوں اور ریاستی عوام کے منگوں کے مطابق تنازع کشمیر کے پرامن حل میں اپنا کردار ادا کرے۔ کانفرنس جموں کشمیر تحریک خود ارادیت انٹرنیشنل اور یوتھ پارلیمنٹ پاکستان نے مشترکہ طور پر منعقد کی تھی۔ مقررین میں خیبر پختونخوا کے گورنر شاہ فرمان، برطانیہ کی پارلیمنٹ میں کشمیر سے متعلق کل جماعتی پارلیمانی گروپ کی چیئرپرسن ڈیبی ابراہمز، لیبر فریڈ آف کشمیر کے رکن پارلیمنٹ اینڈریو گوون، سینیٹر مشاہد حسین سید، راجہ نجابت حسین، عبید الرحمان قریشی اور اشفاق محمد شامل تھے۔ آگے بڑھتے ہوئے کچھ خبریں آپ کو چین اور بھارت کے حوالے سے، لیکن اس سے پہلے آپ کو بتائیں کہ پاکستان نے مقبوضہ کشمیر میں بھارتی قابض افواج کی جانب سے کشمیری نوجوانوں کو ماورائے عدالت قتل کرنے کی شدید مذمت کی ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ عائشہ فاروقی نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ گزشتہ 5 ماہ کے دوران بھارتی قابض افواج کی جانب سے 110 سے زیادہ کشمیری جوانوں کو جعلی مقابلوں میں شہید کیا گیا ہے۔ گزشتہ 2 روز کے دوران 8 کشمیری نوجوانوں کو پلوامہ اور شپیاں میں شہید کیا گیا۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا کہ BJP حکومت قابض افواج کی جانب سے ان ہلاکتوں کی براہ راست ذمہ دار ہے۔ عالمی قوانین ماورائے عدالت قتل کی اجازت نہیں دیتے۔ ان قوانین کا ذکر انسانی حقوق کے معاہدوں میں بھی ہے۔ دفتر خارجہ کی ترجمان نے کہا کہ عالمی برادری مقبوضہ کشمیر میں اس تمام تر صورتحال کا فوری نوٹس لے۔ اسلام آباد انسٹیٹیوٹ آف کانفلکٹ ریزولوشن کے زیر اہتمام آن لائن کشمیر کانفرنس کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے جموں کشمیر سالویشن موومنٹ کے صدر الطاف احمد بٹ، لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ رضا محمد خان، صباح الاسلم،
अहमद कुरैशी, यासिर रहमान और दूसरे मुकर्रीन ने मकबूजा कश्मीर में भारतीय जुल्म बर्बरियत और इंसानी हुकूक की पामारियों पर रोशनी डाली। उन्होंने कहा कि मकबूजा कश्मीर में भारत की तरफ से किए गए यकतरफा इकदामात ने पूरे खित्ते के अमन को दाव पर लगा दिया है और तबाही के दहाने पर पहुंचा दिया है, क्योंकि तराज़ कश्मीर के तमाम फरीक एटमी ताकतें हैं। उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा पर जोर दिया कि वो भारत पर दबाव डाले कि वो इंसानी हुकूक के आलमी तंजीमों को कश्मीर जाने की इजाज़त दे। उन्होंने हुकूमत पाकिस्तान और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से अपील की कि वो मकबूजा कश्मीर में लॉकडाउन के बायस महसूर अवाम और कोरोना वायरस में मुब्तला अफराद के लिए इमदादी पैकेज का ऐलान करें। दुनिया भर में अब तक 89,05,000 से ज्यादा अफराद कोरोना से मुतासर हो चुके हैं, जबकि हलाकतों की तादाद 4,66,000 से तजावुज कर गई है। अब तक 43,27,000 से ज्यादा अफराद सेहतयाब हो चुके हैं। दुनिया का सबसे ज्यादा मुतासरा मुल्क अमरीका है, जहां मुतासरीन की तादाद 23,29,000 से ज्यादा है, जबकि 1,22,000 के करीब अफराद जान की बाजी हार चुके हैं। दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा मुतासरा मुल्क ब्राजील है, जहां 10,70,000 से ज्यादा अफराद में वायरस की तस्दीक हुई है, जबकि अमवात की तादाद 50,000 से तजावुज कर चुकी है। रूस तीसरे नंबर पर है, जहां हलाकतों की तादाद तो 8,000, लेकिन मुतासरा अफराद की तादाद 5,76,000 से ज्यादा है। सबसे ज्यादा मुतासर होने वाले ममालिक की फहरिस्त में भारत चौथे नंबर पर आ गया है, जहां 13,000 से ज्यादा अफराद हलाक, जबकि 4,11,000 से ज्यादा मुतासर हैं। रिसर्चर्स के मुताबिक दुनिया में कोरोना से मुतासर होने वाले 80% अफराद में इसकी मामूली अलामात ही दिखाई देती हैं, और ऐसे लोग जिनमें ये अलामात शिद्दत से पाई गई हैं अकलियत में हैं। उधर स्पेन में दाखिले के बाद बरतानवी सयाहों पर करंटीना में रहने की पाबंदी नहीं होगी। स्पेन के वज़ीर ख़ारजा ने बरतानवी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू देते हुए कहा कि बरतानवी शहरियों को आइसोलेशन में जाने की जरूरत नहीं और वो स्पेन में आज़ादाना घूम फिर सकते हैं। ऐसा उन 4 लाख बरतानवी शहरियों के लिए एहतरामन किया गया है जिनका स्पेन में दूसरा घर है, लेकिन अभी बरतानिया में नाफिज कवानीन के मुताबिक जो भी बरतानिया में वापस आएगा उसके लिए दोनों सूरतों में 14 दिन के लिए आइसोलेशन में रहना जरूरी होगा। बरतानिया में करंटीना की पाबंदियों पर नजरसानी 29 जून को होगी। बरतानवी हुकाम ने खबरदार किया था कि लोग इंतहाई जरूरत पड़ने पर ही मुल्क से बाहर सफर करें। खबर दें आपको लंदन से, जहां मशरकी कस्बे रेडिंग के एक पार्क में चाकू बरदार शख्स के हमले से 3 अफराद हलाक जबकि कई जख्मी हो गए हैं। बरतानवी मीडिया के मुताबिक पुलिस ने जाए वकुआ से एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया है और जख्मी होने वाले कई अफराद को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है, जहां 2 की हालत तशवीशनाक है। एक ऐनी शाहिद के मुताबिक एक शख्स ग्रुप्स की सूरत में मौजूद लोगों के पास जा रहा था और चाकू के वार कर रहा था। बरतानवी हुकाम की जानिब से न तो जख्मी होने वालों और न ही हलाक होने वाले अफराद की तादाद के बारे में अभी तक कोई तस्दीक की गई है। वज़ीर मवासलात मुराद सईद ने कहा है कि मुल्क भर से गुर्बत का खात्मा वज़ीर आज़म का मिशन है। पीपल्स पार्टी खुद कुछ करती है, न दूसरों को करने देती है। पीपल्स पार्टी मुखालफत के बजाय अवामी फलाही इकदाम की हिमायत करे। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वफाकी वज़ीर ने कहा कि बिलावल भुट्टो की खिदमत की सियासत सिर्फ बयानात तक महदूद है। सियासी जमातों में अवामी खिदमत और कारकर्दगी का मुकाबला होना चाहिए। पीपल्स पार्टी की क़यादत सिंध के अवाम की खिदमत की राह में रोड़े न अटकाए। प्राइम मिनिस्टर का विजिट जो था वो एहसास इमरजेंसी कैश रिलीफ के सेंटर का विजिट था। जो मेहनत कश थे, जिनका रोजगार खत्म हो गया, जो मुस्तहिकीन थे, उन लोगों को माली इमदाद प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने ऐलान किया था। 1,60,00,000 खानदानों को मौजूदा बहरान में एहसास इमरजेंसी कैश रिलीफ के थ्रू फी खानदान 12,000 रुपए इमरान खान ने दिए। तो उसमें लड़काना भी आ रहा था, उसमें शक्कर भी आ रहा है। उनको रिलीफ देना, उनको इमदाद देना, इस पे तो आपको खुश होना चाहिए था। स्पीकर कौमी असेंबली असद कैसर ने कहा है कि आलमी वबा की वजह से हम हालत जंग में हैं। मुहलिक वबा कोरोना से फ्रंट लाइन पर लड़ने वाले डॉक्टर्स और दूसरा तिब्बी अमला हमारे हीरो हैं।
पूरी कौम इन्हें सलाम पेश करती है। बादशाह खान मेडिकल कॉम्प्लेक्स स्वाबी में तकरीब से खिताब करते हुए स्पीकर कौमी असेंबली ने कहा कि उनकी सियासत का महवर आवाम की खिदमत है। स्वाबी में सेहत और तालीम के शोबों में इस्लाहात लाने के लिए तमाम वसाइल बरोए कार लाए जा रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स अस्पताल को मजीद फाल करने के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। गज्जू खान मेडिकल कॉलेज की PC1 इख्तितामी मराहिल में है, जबकि स्वाबी में जदीद तर्ज का वुमेन एंड चिल्ड्रन अस्पताल जल्द तामीर करेंगे। कोरोना वबा से महफूज ईद उल अजहा के लिए SOPs की तैयारी के लिए इस्लामाबाद में उलमा और मशाइख के साथ मुशावरती इजलास हुआ। इजलास में वफाकी वज़ीर दाखिला और मुल्क भर से नुमाइंदा उलमा कराम और मशाइख अज़ाम ने अपनी अपनी तजावीज़ पेश की। इजलास में मवेशी मंडियों और ईद उल अजहा के इज्तिमात को महफूज बनाने के हवाले से लाहे अमल पर तफसीली मुशावरत भी की गई। इजलास में तय किया गया कि सूबों गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर से आने वाली तजावीज़ की रोशनी में कौमी लाहे अमल तय किया जाएगा। मुशीर सेहत डॉक्टर जफर मिर्जा, वफाकी वज़ीर मजहबी उमूर पीर नूरुल हक कादरी इजलास में शरीक थे। पार्लिमानी उमूर के वज़ीर ममलिकत अली मोहम्मद खान ने कहा है कि कोरोना से ज्यादा मुतासरा इलाकों में लॉकडाउन किया जा रहा है। अवाम से अपील है कि वो एहतियाती तदाबीर पर अमल करें। सख्त भाई और जलाला के 3 बड़े अस्पतालों के मुआयने के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अली मोहम्मद खान का कहना था कि अस्पतालों में किट्स और डॉक्टर्स को जरूरी हिफाजती सामान फराहम कर दिया गया है। तिब्बी अमला फ्रंट लाइन पर कोरोना के खिलाफ नबर्दाज़मा है। पाकिस्तान ने तुर्खम और चमन को ट्रांजिट ट्रेड के लिए हफ्ते में 6 दिन खोलने का फैसला किया है। इसके अलावा एक तीसरा तिजारती रास्ता गुलाम खान भी खोला जा रहा है ताकि बैकलॉग खत्म किया जा सके। फैसले पर 22 जून से अमल दरामद होगा। मुशीर तिजारत अब्दुर्रज़ाक दाऊद ने अपने ट्वीट पैगाम में कहा कि इस सिलसिले में उनकी अफगान सफीर आतिफ मशल से मुलाकात हुई, जिसमें पाक अफगान ट्रांजिट ट्रेड माहिदे पर दोबारा मुज़ाकरात शुरू करने पर बात हुई और अफगानिस्तान के रास्ते गैर कानूनी दरामदात रोकने के लिए मजीद हिफाजती इक़दाम पर जोर दिया गया। काबीना कमेटी बराए तवानाई का इजलास वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी और तरक्की और खुसूसी इक़दाम असद उमर की ज़ेर सदारत इस्लामाबाद में हुआ। कमेटी को 1124 मेगावाट कोहाला और 700 मेगावाट के आज़ाद पतन पन बिजली मंसूबों की मौजूदा सूरत हाल और पावर जनरेशन फ्रेमवर्क पॉलिसी और CPEC के तहत माहिदों पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। काबीना कमेटी ने मुतालिका माहिदों पर दस्तखत के लिए वजारत तवानाई की पेश करदा तजावीज़ की मंजूरी देते हुए सहूलतों की फराहमी को बरवक्त यकीनी बनाने की हिदायत की। इजलास में पावर प्लांट्स के लिए HSFO की डिमांड का भी जायजा लिया गया और वजारत पेट्रोलियम को हिदायत की गई कि तलब को पूरा करने के लिए इकदाम किए जाएं। इसके अलावा मुल्क में LPG की सप्लाई की सूरत हाल का भी जायजा लिया गया। खैबर पख्तूनख्वा के आइंदा माली साल के बजट में कोरोना इमरजेंसी फंड के लिए 24 अरब रुपए रखे गए हैं। आवाम को सेहत की सहूलियात देना इस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज है, जिससे निपटने के लिए हुकूमत पूरी तरह तैयार है। सूबाई वज़ीर खजाना तैमूर सलीम झगड़ा की पोस्ट बजट न्यूज कॉन्फ्रेंस की तफसील बताएंगे अमजद अली खान। पेशावर में न्यूज कॉन्फ्रेंस के दौरान खैबर पख्तूनख्वा के आइंदा माली साल के बजट की तफसीलात से आगाह करते हुए सूबाई वज़ीर खजाना तैमूर सलीम झगड़ा ने कहा कि मुश्किल हालात के बावजूद सूबे में बेहतर माली इंतजाम बरकरार है। नए बजट में सेहत के शोबे के लिए 148 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं, जिनमें कोरोना इमरजेंसी फंड के लिए 24 अरब रुपए रखे गए हैं। उन्होंने कहा कि सूबे में बुनियादी, सानवी और आला तालीम के फरोग पर 207 अरब रुपए खर्च किए जाएंगे। खैबर पख्तूनख्वा की इकॉनमी में 5 में 1 रुपए तकरीबन हुकूमत लगाती है, तो हुकूमत पब्लिक इन्वेस्टमेंट करेगी प्रोजेक्ट्स में, वर्क्स के प्रोजेक्ट्स में, सड़कें बनाने में और कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी में इकोनॉमिक स्टिम्युलस देगी, तो इकोनॉमी जो है किसी हद तक प्रोटेक्ट होगी। वजीर खजाना ने कहा कि माली साल 2020-21 के लिए 49 अरब रुपए का टैक्स हदफ रखा गया है। सूबे का माली इंतजाम तेल व गैस की रॉयल्टी, बिजली के खालिद मुनाफा और वफाकी महासिल की मदद से चलता है। उन्होंने कहा कि बजट में कोई नया टैक्स नहीं, जबकि 27 मुख्तलिफ टैक्स के तनासुब में कमी की गई है। इस मौके पर मुशीर इतलात अजमल वजीर ने कहा कि बजट में कबायली असलाह के लिए खतरखा रकम रखी गई है। कोरोना वायरस की वजह से माशी सुस्तरवी पर भी जल्द काबू पा लिया जाएगा। ये जो मर्ज डिस्ट्रिक्ट का मसला है, इसको हमने मर्ज किया खैबर पख्तूनख्वा में, लेकिन ये मसला पाकिस्तान का था।
ये फैसला नेशनल लेवल पे तमाम पॉलिटिकल लीडरशिप ने किए, तो काइंडली जो एनएफसी में 3% बनता है वो काइंडली दे, ताकि हम मजीद आगे वहां के जो 72 साल के महरूमी है वो हम दूर कर सके। सूबाई मुशीर इत्तलात ने खैबर पख्तूनख्वा में जमशुदा अजला की तरक्की और खुशहाली के लिए दीगर सूबों से अपने हिस्से के एनएफसी अवार्ड में 3% हिस्सा देने पर जोर दिया। अमजद अली खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, पेशावर। सिंध के वज़ीर आला सैयद मुराद अली शाह ने अवाम से अपील की है कि वो कोरोना वायरस से बचाव के लिए एहतियाती तदाबीर पर सख्ती से अमल करें, जबकि कराची के 6 अजला के मुख्तलिफ यूसीज में लॉकडाउन जारी है। तफसील बताएंगे मोहम्मद जुबैरुद्दीन। कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए शहर कराची की मुख्तलिफ यूसीज में सिलेक्टेड और स्मार्ट लॉकडाउन जारी है, जहां खरीदारी के लिए घर का एक फर्द मास्क पहनकर बाहर जा सकता है, जबकि इन इलाकों की यूसीज में ट्रैफिक और नकलो हमल मुकम्मल तौर पर बंद की गई है। अपने वीडियो बयान में सिंध के वजीर आला सैयद मुराद अली शाह ने कहा कि सूबे में 24 घंटों में 10,830 कोरोना वायरस के टेस्ट किए गए, जिसके नतीजे में 2,190 नए केसेस सामने आए हैं। उन्होंने बताया कि अब तक सूबे में 3,64,959 कोरोना वायरस के टेस्ट किए जा चुके हैं। अब तक 34,112 मरीज सेहतियाब हो चुके हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने न्यूज कॉन्फ्रेंस में दावा किया है कि सेहत की सहूलियात में सूबा सिंध सबसे आगे है, जबकि कोरोना की टेस्टिंग में भी बतदरीज आगे बढ़ रहे हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी ने घोटकी, कराची और लाड़काना में होने वाले वाकयात की मजम्मत की और कहा कि सिंध हुकूमत इस सिलसिले में सख्त इक़दाम कर रही है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की न्यूज कॉन्फ्रेंस पर रद्द अमल का इजहार करते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सिंध के सदर हलीम आदिल शेख ने कहा है कि बिलावल भुट्टो जरदारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस विफाक पर इल्जामात के पुलंदे के सिवा कुछ नहीं। उनकी वो हुकूमत जो 12 साल से सिंध में है, 15,000 अरब से ज्यादा बजट उनके पास आ चुका है और सेहत में ही सिर्फ 5,500 अरब का बजट उनके पास रहा, लेकिन उन्होंने सिंध को क्या दिया? आपके शहर, आपके हल्के लाड़काना में 2 अरब 20 करोड़ रुपए इमरान खान साहब की जानिब से आपके हल्के लाड़काना के 1,85,000 लोगों को मिलने 1,15,000 को मिल चुके हैं। उन्होंने कहा कि वो वजीर आजम से अपील करते हैं कि सुबह सिंध में 10 साल का फॉरेंसिक ऑडिट कराया जाए, ताकि सिंध हुकूमत की करप्शन की दास्तान सबके सामने आ सके। मोहम्मद जुबैरुद्दीन, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, कराची। चेयरमैन एनडीएमए लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अफजल ने मुजफ्फराबाद का दौरा किया और वहां कोरोना की सूरत हाल और हुकूमती सतह पर उठाए गए इकदाम का जायजा लिया। इस मौके पर वजीर सेहत आजाद कश्मीर डॉक्टर नजीब नकी खान और दूसरे हुकाम भी मौजूद थे। शेख ज़ैद अस्पताल मुजफ्फराबाद में महकमा सेहत की जानिब से ब्रीफिंग दी गई। इस मौके पर चेयरमैन एनडीएमए ने कहा कि आजाद कश्मीर में कोरोना से निपटने के लिए तमाम तर वसाइल मुहैया किए जाएंगे। आजाद कश्मीर के 4 अजला में 20 बिस्तरों के आईसीयूज, 10 वेंटिलेटर्स, 12 पोर्टेबल एक्सरे मशीन्स और सीएमएच में इजाफी बेड्स के लिए ऑक्सीजन लाइन की तनसीब समेत दीगर जरूरी तिब्बी सामान फराहम किया जाएगा। मुआविन खुसूसी शहबाज गिल ने कहा है कि कोरोना के खिलाफ हेल्थ वर्कर्स के जज्बे और काविशों को सराहते हैं। तिब्बी अमले की हिफाजत और उनके मसाइल का हल तरजीह है। कोयटा में तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत लियाकत शाहवानी के हमरा मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि हुकूमत ने बतदरीज टेस्टिंग की सलाहियत में नुमाया इजाफा किया और मुल्क भर के अस्पतालों में इस्तेदाद कार में इजाफा कर रहे हैं। एहसास प्रोग्राम के तहत शफाफ अंदाज में रकूम की तकसीम यकीनी बनाई गई। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत लियाकत शाहवानी ने कहा कि सूबे के मसाइल के हल में दिलचस्पी लेने पर वज़ीर आज़म के मशकूर हैं। इस्लामाबाद में बढ़ते कोरोना केसेस के बायस इंतजामिया ने G92 और G93 सेक्टर्स में लॉकडाउन में 3 दिन की तौसी कर दी है। डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद के मुताबिक लॉकडाउन के खात्मे या मजीद तौसी के हवाले से आइंदा का फैसला मंगल को किया जाएगा। उधर हुकूमत की जानिब से कोरोना से बचाव के लिए मास्क पहनना लाजमी करार दिए जाने के बाद सरगोदा में इंतजामिया मुतहर्रिक हो गई है। मास्क न पहनने वालों के चालान और एसओपीज पर अमल करने वालों को फूल पेश किए जा रहे हैं। तफसील इस रिपोर्ट में जानिए। सरगोदा में ट्रैफिक पुलिस एहलकारों ने पब्लिक ट्रांसपोर्ट, निजी इस्तेमाल की गाड़ियों और मोटरसाइकिल सवारों को सफर के दौरान मास्क न पहनने पर उनके चालान करना शुरू कर दिए। ट्रैफिक पुलिस हुकाम की जानिब से शहरियों को मास्क और दस्तानों के हवाले से आगाही भी दी जाती रही। इस सिलसिले में ट्रैफिक पुलिस एहलकारों ने
मोटरसाइकिल सवारों और गाड़ी चलाने वाले अफराद जिन्होंने मास्क पहना हुआ था उनमें फूल भी तकसीम किए। ट्रैफिक पुलिस हुकाम ने शहरियों को आगाही देते हुए कहा कि कोरोना पर काबू पाने के लिए मास्क पहनना बहुत जरूरी है, इसलिए एहतियात करें। शहरियों को फूल देने का मकसद मास्क पहनने की हौसला अफजाई करना था ताकि कोरोना से बचा जा सके। वफाकी हुकूमत की जानिब से खैबर पास इक्तिसादी राहदारी की तामीर की मंजूरी के बाद मकामी ताजिर और अवाम तवक्को कर रहे हैं कि इस नई तिजारती राहदारी से इलाके में तरक्की का नया दौर शुरू होगा। तफसील हजरत उमर शनवारी से। अफगानिस्तान और वस्ती एशियाई मुल्क के साथ तिजारती सरगर्मियों के फरोग के लिए वफाकी हुकूमत ने आलमी बैंक के ताउन से एक नए इक्तिसादी राहदारी मंसूबे पर काम शुरू कर रही है। मंसूबे में पेशावर से तुरखाम सरहद तक 44 किलोमीटर 4 रोया एक्सप्रेस वे के अलावा एक बड़े सनती जोन की तामीर भी शामिल है। इफ्तिताई सर्वे के बाद मंसूबे पर 65 अरब रुपए की लागत का तखमीना लगाया गया है। तकरीबन 7 दिहाइयों तक तरक्की से महरूम रहने वाली जिले खैबर के लोगों के लिए मंसूबा एक बड़े तोहफे से कम नहीं। इंडस्ट्री जोन बनेगा जो शाकस और बाड़ा दोनों में से एक जगह को सेलेक्ट किया जाएगा, वहाँ पे लोग इंडस्ट्री लगाएंगे और फिर यहाँ से कारोबारी आमदोरफ्त की ईजी होगा। और खासकर बॉर्डर के लिए, अफगानिस्तान के लिए, सेंट्रल एशिया के लिए यहाँ पे जो इंडस्ट्री लगेगा उनके लिए नजदीक तरीन एरिया होगा यहाँ से सामान पहुँचाने में। इस मंसूबे से पाकिस्तान बरामदात की वस्ती एशियाई ममालिक की मंडियों तक रसाई मजीद आसान हो जाएगी। राहदारी की तामीर से 1 लाख तक रोजगार के मौके भी पैदा होंगे। वफाकी हुकूमत ने जो ऐलान किया है खैबर इकनॉमिक कॉरिडोर का, इससे तिजारत बढ़ेगी, खास कर ताजिरों को बड़ा फायदा होगा, इस इलाके में खुशहाली आएगी। पास इकनॉमिक कॉरिडोर से हमको बहुत फायदा मिलेगा और ये जो हमारा ट्रांसपोर्टर का मसला है, आने जाने का मसला है, ये भी हल हो जाएगा। खैबर पास इकनॉमिक कॉरिडोर मंसूबा 2024 में मुकम्मल होगा। इसकी तामीर से मकामी ताजरों के साथ साथ आम लोगों की माशी जिंदगी पर भी मुस्बत असरात मुरतब होंगे। हजरत उमर शिनवारी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, लंडी कोतल। लाहौर आर्ट काउंसिल में 16वीं सालाना यंग आर्टिस्ट नुमाइश कामयाबी से जारी है, जिसमें मुल्क भर के नौजवान आर्टिस्ट के फनकारों को नुमाइश के लिए रखा गया है। तफसीलात बताएंगे लाहौर से वकास भट्टी। आर्ट और फनून लतीफ़ा की हौसला अफजाई जहाँ तख्लीकी सरगर्मियों को फरोग देती है, वहाँ माशरे में मुस्बत सोच को परवान चढ़ाने में भी मददगार साबित होती है। इस सालाना नुमाइश का मकसद मुल्क के नौजवान फनकारों की हौसला अफजाई करना और उन्हें अपनी तख्लीकी सलाहियतों को मनवाने का मौका फराहम करना है। नुमाइश में गिलगित बल्तिस्तान, आजाद कश्मीर समेत मुल्क भर से 400 जायद नौजवान आर्टिस्टों के फनपारे रखे गए हैं। कोरोना की सूरत हाल के पेश नजर इस नुमाइश को ऑनलाइन दिखाने का भी एहतमाम किया गया है। COVID-19 also given us an opportunity to reset, redirect and replace our position in the society, in the cultural landscape. नौजवान आर्टिस्टों के फनपारे देख के बाखूबी अंदाजा होता है कि वो तख्लीकी एतबार से किसी से पीछे नहीं। कहीं कुदरत के खूबसूरत रंगों को पेंटर्स ने बड़ी महारत के साथ कैनवस पर उतारा है, तो कहीं लाहौर की खूबसूरत शामों की अक्कासी की गई है, कहीं जिंदगी के मुख्तलिफ लम्हात को हमेशा के लिए महफूज किया गया है, तो कहीं तजरीदी आर्ट के जरिए किसी अनकही बात को बड़े राज के साथ पेश किया गया है। इस एग्जीबिशन का पर्पज हमारे पूरे मुल्क से जो यंग आर्टिस्ट हैं उनके काम को डिस्प्ले करना है। तमाम SOPs के साथ ये एग्जीबिशन को हमने होल्ड किया है। नुमाइश के ऑनलाइन एहतमाम को न सिर्फ मुल्क में बल्कि दुनिया भर में पसंद किया गया है और अब तक हजारों अफराद ऑनलाइन नुमाइश से मुस्तफीद हो चुके हैं। कोरोना वबा के दौरान तमाम SOPs के साथ साथ यंग आर्टिस्ट नुमाइश का इनकाद माशरे में मुस्बत सोच को फरोग देने के साथ साथ नौजवान फनकारों की हौसला अफजाई का भी बायस बनेगा। वकास भट्टी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, लाहौर। शहर कायद इन दिनों शदीद गर्मी की लपेट में है और गर्मी के साथ साथ के इलेक्ट्रिक की जानिब से गैर एलानिया लोड शेडिंग ने लोगों को अजियत में डाल रखा है। तफसील बताएंगे जिशान अहमद खान।
कराची में दर्जा हरारत 37.7 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहा। ताहम हवा में नमी का तनासुब 53% होने के बायस गर्मी की शिद्दत 41 डिग्री सेंटीग्रेड तक महसूस की गई। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची के जुनूब में मशरकी बहरा अरब में हवा के कम दबाव की वजह से समुद्री हवाओं में कमी वाक़ हो रही है, जिसके सबब गर्मी ज्यादा महसूस की जा रही है। से जो क्लाउड आते हैं उनकी थोड़ी ज्यादा होगी, लेकिन ये गर्मी का सिलसिला यानी हॉट एंड ह्यूमिड वेदर जगह भी दिन के औकात में रहा करेगा अगले चंद दिन ऐसे ही। गर्मी से बेहाल लोगों ने साहिल समंदर का रुख किया, जबकि ठंडे मशरूबात की मांग में भी इजाफा हो गया है। दूसरी जानिब शहर के मुख्तलिफ इलाकों में के इलेक्ट्रिक की तरफ से गैर एलानिया लोड शेडिंग ने लोगों को अजियत में मुब्तला कर दिया है। गर्मी ऐसा है, घबराहट होता है, नींद भी नहीं है, सारा रात बिजली भी नहीं है। लाइटों का भी आजकल परेशानी शुरू हो गई है। अब एक टाइम जा रही थी, अब 2-2, 3-3 टाइम ले रहे हैं। 1 बजे लाइट जा रही है, 3 बजे आ रही है लाइट। क्या करें हम लोग, गरीब लोग कहाँ जाएं, परेशान है। घर में जाओ तो लाइट नहीं है, बाहर आओ तो काम हो नहीं रहा गर्मी की वजह से। धूप इतनी है, न कुछ काम कर सकते न कुछ से बैठे रहते। महकमा मौसमियात के मुताबिक गर्मी की लहर अगले 1 हफ्ते तक जारी रहने का इम्कान है। ताहम शहर के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बूंदाबांदी के भी इम्कानात हैं। ज़ुशान अहमद खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कराची। महकमे मौसमियात के मुताबिक आज मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क, जबकि सिंध, जनूबी पंजाब और बलूचिस्तान में शदीद गर्म रहेगा। ताहम शुमाल मशरकी पंजाब, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और उससे मुल्हिका पहाड़ी इलाकों में आंधी और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। इस दौरान मुल्तान में गाजी खान, लिया, सखर, लाड़काना और शहीद बेनजीराबाद में गर्द आलूद हवाएं चलने का इम्कान है। रिकॉर्ड किए गए ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत दादू, मोहनजोदाड़ो 47, नौकुंडी और नूरपुर थल में 40 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। आखिर में मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में रिकॉर्ड किए गए ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत की तफसील। खेलों में नाज़रीन, सबसे पहले आपको बताएं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ऑलराउंडर शोएब मलिक को दौरा इंग्लैंड के लिए खुसूसी रियायत देने का फैसला किया है। शोएब मलिक 24 जुलाई को कौमी टीम को इंग्लैंड में ज्वाइन करेंगे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मुताबिक शोएब मलिक गुज़श्ता 5 माह से अपने अहल खाना से नहीं मिल पाए, इसलिए उन्हें अपने अहल खाना के साथ वक्त गुजारने का वक्त दिया गया है। कोरोना वायरस के बायस बैनुल अक़वामी सफरी पाबंदियों की वजह से शोएब मलिक की अहलिया सानिया मिर्जा और बेटा अजहान मिर्जा मलिक भारत में, जबकि शोएब मलिक खुद सियालकोट में मुकीम है। सफरी पाबंदियों से कबल शोएब मलिक PSL 5 में पेशावर ज़ल्मी की नुमाइंदगी करने में मसरूफ थे। और बांग्लादेश के फास्ट बॉलर मशरफी मुर्तजा का कोरोना टेस्ट मुस्बत आ गया है। 36 साला बांग्लादेशी क्रिकेटर ने गुज़श्ता हफ्ते अपना टेस्ट कराया था, जिसकी रिपोर्ट मुस्बत आई है। मशरफी मुर्तजा बांग्लादेशी पार्लियामेंट के रुकन भी हैं और इस वक्त ढाका में मौजूद हैं। लॉकडाउन के दौरान मशरफी मुर्तजा फलाही कामों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते रहे। बांग्लादेश में वो कोरोना वायरस का शिकार होने वाले पहले क्रिकेटर हैं। मशरफी मुर्तजा ने 36 टेस्ट, 220 वनडे और 54 T20 मैचेस में मुल्क की नुमाइंदगी की। वो अब बैनुल अक़वामी सतह पर सिर्फ वनडे क्रिकेट खेलते हैं। इटली के साबिक फार्मूला 1 ड्राइवर और 2 मरतबा के चैम्प कार चैंपियन एलेक्स ज़नादी जख्मी होकर अस्पताल पहुंच गए हैं। 53 साला एलेक्स ज़नादी इटली में हाईवे पर हैंड बाइक पर रेस लगा रहे थे कि हादसे का शिकार हो गए। उन्हें एयर एम्बुलेंस के जरिए फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल किया गया। इससे पहले एलेक्स साल 2001 में जर्मनी में चैम्प कार रेस के दौरान हादसे का शिकार होकर दोनों टांगे गंवा चुके हैं। एलेक्स ज़नादी रोड साइकिलिंग में 4 मरतबा पैरा ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट भी रह चुके हैं। और अब फुटबॉल की बात करते हैं तो पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन की जानिब से अगले 1 माह में 5 ऑनलाइन कोर्सेज मुनक्किद किए जाएंगे। कोरोना वायरस की वजह से पैदा होने वाले हालात ने फुटबॉल की सरगर्मियों को भी मुतासर किया है। अलबत्ता मुल्क के कोचेज की बेहतरी के लिए पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन ने ऑनलाइन कोर्सेज मुनक्किद करने का फैसला किया है। इस सिलसिले का पहला कोर्स खवातीन के लिए रिफ्रेशर कोचिंग कोर्स होगा, जो 21 जून तक जारी रहेगा। 26 से 28 जून के दरमियान खवातीन के लिए तारफी कोचिंग कोर्स मुनक्किद किया जाएगा। पाकिस्तान प्रीमियर फुटबॉल लीग और पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन लीग के कोचेस के लिए रिफ्रेशर कोर्सेज 2 से 4 और 9 से 11 जुलाई के दरमियान मुनक्किद किए जाएंगे, जबकि तारफी कोचिंग कोर्स का इनेकाद 16 से 18 जुलाई के दरमियान किया जाएगा।
انگلش پریمیئر لیگ کی بات کرتے ہیں تو انگلش پریمیئر لیگ میں ساؤتھ ہیمپٹن نے ناروچ سٹی کو شکست دے دی ہے۔ ناروچ میں کھیلے گئے میچ میں 13ویں نمبر پر موجود ساؤتھ ہیمپٹن نے آخری نمبر کی ٹیم میزبان ناروچ کو یک طرفہ مقابلے کے بعد 3 گول سے ہرا دیا۔ دونوں ٹیموں کے درمیان پہلا ہاف گول سے خالی رہا، تاہم دوسرے ہاف میں ساؤتھ ہیمپٹن نے 5 منٹ کے وقفے سے 2 گول کر کے ریلیگیشن کا شکار ناروچ کی ٹیم کو پریشان کر دیا۔ 49ویں منٹ میں ڈینی اور 54ویں منٹ میں اسٹوارٹ آرمسٹرانگ نے گول کیے۔ 79ویں منٹ میں نیتھن ریڈمنڈ نے گول کر کے ساؤتھ ہیمپٹن کو فتح سے ہمکنار کیا۔ مانچسٹر یونائیٹڈ اور میزبان ٹاٹنہم کے درمیان مقابلہ 1-1 گول سے برابر رہا۔ 27ویں منٹ میں سٹیون نے گول کر کے ٹاٹنہم کو برتری دلائی، تاہم 81ویں منٹ میں حریف ٹیم کو پینلٹی کک تھما دی گئی، جس پر مانچسٹر یونائیٹڈ کے برونو فرنانڈیز نے کوئی غلطی کیے بغیر گول کر کے یہ مقابلہ برابر کر دیا۔ پرتگال پریمیئر لیگ میں اسپورٹنگ سی پی نے ٹونڈیلا کو 2 گول سے ہرا دیا ہے۔ ٹونڈیلا کی ٹیم کوئی بھی گول نہ کر پائی۔ لسبن میں کھیلے گئے میچ میں میزبان اسپورٹنگ سی پی کی ٹیم مکمل طور پر حاوی رہی۔ میچ کا زیادہ تر حصہ ٹونڈیلا کے ہاف میں کھیلا گیا۔ 13ویں منٹ میں جوون کابرال نے گول کر کے اپنی ٹیم کو برتری دلائی۔ 31ویں منٹ میں اسپورٹنگ کو ملنے والی پینلٹی کک پر آندروس پورڈ نے گول کر کے اسپورٹنگ کو کامیابی سے ہمکنار کیا۔ اس فتح کے ساتھ اسپورٹنگ کی ٹیم 1 درجے ترقی پا کر پوائنٹس ٹیبل پر 3رے نمبر پر آ گئی ہے۔ اور ناظرین، برازیل کے فٹ بالر نیمار کو لینے کے دینے پڑ گئے ہیں۔ پیرس سینٹ جرمن اور برازیل کے فارورڈ نیمار اپنے سابقہ کلب بارسلونا سے 4 کروڑ 87 لاکھ امریکی ڈالرز لینے گئے، لیکن انہیں 75 لاکھ امریکی ڈالرز ادا کرنے پڑ گئے۔ نیمار نے اسپینش لیگ چیمپئن بارسلونا کے خلاف بونس ادا نہ کیے جانے کے حوالے سے مقدمہ کیا، لیکن اس میں کامیابی حاصل نہ ہونے پر انہیں کلب کو 75 لاکھ امریکی ڈالر سے زائد ادا کرنا پڑیں گے۔ نیمار 2017 میں پیرس سینٹ جرمن کے ساتھ ریکارڈ 41 ارب پاکستانی روپوں سے زائد کے معاہدے پر بارسلونا کلب چھوڑ گئے تھے، تاہم لا لیگا کلب کو 1 سال پہلے کی ادائیگیوں کے حوالے سے عدالت بھی لے گئے تھے۔ اور ناظرین، اسی کے ساتھ ہی اسپورٹس نیوز سے فی الوقت اتنا ہی۔ اب آپ کو لیے چلیں گے مین ڈیسک کی جانب۔ کھیلوں کی خبروں کے ساتھ یہ خبرنامہ مکمل ہوا۔ رضوان علی احمد اور نازیہ خان کو اجازت دیجیے۔ مزید فیوچر اپڈیٹس کے لیے ساتھ رہیے گا۔ روشن صبح کندن شامیں چندن راتیں، آؤ کریں جادوئی بلوچستان کی باتیں، بوزی اور بولان کی باتیں، نوشکی اور مکران کی باتیں۔ یہ ہے ایک انوکھی دھرتی جس میں صحرا اور سمندر اور پہاڑ گلے ملتے ہیں۔ اس خطے میں سفر کریں تو چلتن اور ہنگول کے خد و خال ملیں گے، مارخور اور چمکیلے اڑیال ملیں گے۔ نیلے عرش سی نیلی چادر، یہ حیرت انگیز گوادر جس کی دونوں سمت ہیں لہروں کی دیواریں۔ غیرت والے یہ مت والے، اپنی ریت روایت اور اقدار کو شان بنانے والے، اپنے لباس اور اپنی زبانوں کو پہچان بنانے والے، اس دھرتی میں ملنے والے چاہت سے بھرپور ملیں گے۔ یہ دھرتی زرخیز ہے، اس میں سیب، انار، انگور ملیں گے۔ اور ماڑا اور کنڈ ملیر کے چمکیلے سترنگے ساحل، جیسے یکدم اگل دیا ہو سب سمندر نے اپنا دل۔ اور زیارت کی یہ وادی
جس میں قائد چند روز مہمان بنے تھے۔ اس وادی میں آسمان سے باتیں کرتے دیوانے ان گنت صنوبر کئی ہزاروں سال پرانے کھڑے کھڑے ہی دیکھ چکے ہیں کئی زمانے۔ بہت لذیذ بلوچی سجی جس کا جادو سب کو گھیرے، اور چلغوزے کے باغوں میں پاکیزہ خوشبو کے ڈیرے۔ کھلے سمندر کے راہی بے خوف مچھیرے جو لہروں کی باغیں تھامے ساگر کے نیلے پانی پر چھا جاتے ہیں صبح سویرے۔ سر سنگیت اور گیت کے رسیا، رقص بلوچی، چھاپ اور لیوا۔ بینجو اور سروز کے سر ہر دل کے آنگن میں بستے ہیں۔ یہ نہ ہو تو سارے منظر پھیکے پھیکے سے لگتے ہیں۔ اس خطے کے سینے میں ہے سونے اور ہیروں کی کانیں، معدنیات کے انجانے بے انت خزانے۔ سونے اور ہیروں سے روشن میرے بلوچستان کا دل ہے، اور یہ خطہ پورے پاکستان کا دل ہے۔ پاکستان کے ہر خطے کی الگ ہے خوشبو، جدا ہے رنگت، ہر خطے کے نرالے جذبے، نئی محبت، ہستا بستا یہ گلدستہ ایک تحفہ ہے۔ یہ الفت ہے، یہ رحمت ہے، یہ عزت، یہ شان، یعنی رب کی ایک نعمت ہے دھرتی پاکستان۔ سورج گرہن کے وقت آسمان یا سورج کی طرف دیکھنا بہت خطرناک ہوتا ہے۔ سال 2020 کا پہلا سورج گرہن پاکستان میں 21 جون کو صبح 8:46 سے 2:34 تک جاری رہے گا۔ پاکستان کے مختلف حصوں میں 11:40 پر مکمل سورج گرہن ہوگا۔ گرہن کے دوران سورج کی طرف دیکھنے سے مکمل پرہیز کریں۔ چشمہ لگا کر یا کسی اور چیز کے ذریعے بھی سورج کی طرف بالکل نہ دیکھیں۔ سورج گرہن آپ کی آنکھ کے پردہ بصارت اور نور کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا سکتا ہے۔ یاد رکھیں، اس نقصان کا کوئی علاج نہیں، صرف پرہیز سے ہی آپ خود کو اور اپنے پیاروں کو محفوظ رکھ سکتے ہیں۔ احتیاط کیجیے۔ پرائم منسٹرز کورونا ریلیف فنڈ میں عطیات جمع کرانا بہت آسان ہے۔ www.pmcrf.covid.gov.pk پہ وزٹ کریں۔ ڈونیشن کا طریقہ چنیں۔ اگر آپ ڈیبٹ یا کریڈٹ کارڈ استعمال کر رہے ہیں تو رقم اور آرگنائزیشن کا نام ڈالیں۔ SMS کے ذریعے ڈونیشن کے لیے 6677 پر SMS بھیجیں۔ آن لائن بینک ٹرانسفر چننے پر آپ کو پرائم منسٹرز کورونا ریلیف فنڈ کی اکاؤنٹ ڈیٹیلز دی جائیں گی۔ جیز کیش کے ذریعے عطیات جمع کروانے ہوں تو جیز کیش ایپ، USSD کوڈ یا جیز کی ویب سائٹ کا انتخاب کریں۔ آپ ایزی پیسہ کا بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ تو آگے آئیں اور پرائم منسٹرز کورونا ریلیف فنڈ کے ذریعے پاکستان کے لیے کچھ مل کر کریں۔
चाहे किसी भी मुश्किल में घिर जाए, ईमान उसे हमेशा साबित कदम रखता है। जज्बात में आके रवाना तो हो गया है, लेकिन वापस आता भी है या नहीं? हम आ गए हैं भाई। बस अब बहुत हो चुका, अब तुम्हारी मनमानी नहीं चलेगी सुलेमान शाह। मैं तैयार हूँ उस्ताद आज़म, अपने भाइयों की तरह मुसलमानों के खिलाफ हाजिर होगा। भाई को भाई का और बाप को बेटे का दुश्मन बना दूंगा। अब तुम्हें मुझसे कौन बचा सकता है? अल्लाह ही बचाएगा, और कौन।